नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कूच बिहार में फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से बात की, दिया मदद का भरोसा। तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान के दिन कल कूच बिहार के शीतल कुची में सेंट्रल फोर्सेस के जवानों की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें सांत्वना दिया। सिलीगुड़ी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने कल की घटना पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर निरंकुश होने का आरोप लगाते हुए साजिश के तहत उन्हें कूच बिहार जाने से रोकने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कल की घटना के बाद चुनाव आयुक्त द्वारा 72 घंटों के लिए इस क्षेत्र में किसी राजनेता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ममता बनर्जी आज कूच बिहार जाकर मृतक के परिवार वालों से मिलने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद वहां अब नहीं जा पाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। यह पूछे जाने पर क्या इस घटना को लेकर कोई FIR दर्ज हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस मामले को अलग दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा 14 अप्रैल को वे कूच बिहार जाकर मृतकों के परिवार वालों से मिलेंगी। সবকিছু নির্বাচন কমিশনকে আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু সব নিয়ম তো বদলে দেওয়া যায় না। বা একটা পার্টির ইন্টারেস্টে চেঞ্জিং দ্য অল দ্য সিস্টেমস ক্যানট বি চেঞ্জ। দ্য ইনস্টিটিউশন উইল কন্টিনিউ ফর এভার and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলি, নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যা ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন নজিরবিহীন। ইভেন আমাকে যেতে দেওয়া হলো না শীতলকুচিতে, আমি দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে একটু দেখা করবো বলে, তাদের পরিবারগুলোর কাছে পাশে দাঁড়াবো বলে। আপনারা জানেন আমি শুধু নির্বাচন করি না, আমি অন্য সময় 365 মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে আসি। এবং শুধু তাই নয়, আমি পাশে আছি বলেই দেখবেন কার্শিয়াং কালিম্পং থেকে শুরু করে ইভেন ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানেও কিন্তু আমি ছুটে এসেছি। এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে আমি আসিনি, বড় ঘটনা। সুতরাং আমি যেতে চেয়েছিলাম, 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো। আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করবো। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে। ওকে, আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 hours only because of the MCC. Though I think that MCC টা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, BCC। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে। তারা যা বলছে তাই করছে। আর 24 ঘন্টা ইলেকশনে প্রচার করতে দেবে না কেন? যেহেতু বিজেপির ইলেকশন প্রচার 13th লাস্ট ডেট, তাদের 13th পর্যন্ত প্রচার আছে নর্থ বেঙ্গলে, তাই তারা আমাকে প্রচার করতে দেবে না বলে তারা কেন এসব করবে? আমি তো 14 পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম আছে। আমি আশা করি 14 আপ টু 6 o'clock, এটা 72 hours আগে পর্যন্তই হবে। আমি 13th আবার আসছি নর্থ বেঙ্গলে। 14 তারিখে আমার লাস্ট প্রচার হবে নর্থ বেঙ্গলে, এবং আমি ওই প্রচারে যাবার আগে বা পরে কোনো একটা সময় আমি পরিবারগুলোর সাথে আমি দেখা করে নেব। কারণ এইভাবে আমাকে আটকানো যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। এই লড়াই মনে রাখবেন শুধু আমার একার লড়াই নয়, এই লড়াই আপনার আমার সবার লড়াই, এবং এই লড়াইতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি। আর একটা বলি সাথে সাথে, যে আমাদের ছেলে মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নিজেদের থেকে তারা প্রত্যেকে 100 টাকা করে দেবে, দিয়ে আমরা একটা ফান্ড তৈরি করব, এবং সেই ফান্ডটা তৈরি করে আফটার ইলেকশন, যেহেতু ওই জায়গাটা ইলেকশন হয়নি, আমরা গভর্নমেন্টের 2 টাকা মনে হয় কালকে অ্যানাউন্স করেছে নাকি, যদি পারমিশন চাইতে হয়, লোককে মরে গেলে তার পরিবারকে সাহায্য করতে গেলেও পারমিশন চাইতে হয়। দেখো ওদের সাথে কথা হয়ে গেছে, ওরা অ্যানাউন্স করবে গভর্নমেন্টের থেকে, যেটা পাঁচ করে ওরা একটা দেবার কোনো একটা ব্যাপার, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা আপনাদের বলে দেবে। প্লাস আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে, যেমন আমার নিজের ফিলিংস হচ্ছে, এটা আমি কোনো কন্ডাক্ট ভাঙবো না আশা করি।
কারণ আমার তো ভোট অ্যাকাউন্টে একটা টাকা আছে, যে টাকাটার মধ্যে আমি ভোটটা করতে পারি। আমার ভোটের লিমিটেশন, ভোটের সিলিং এর মধ্যে আমার যে টাকাটা বাঁচবে, ভোটের সিলিং এর মধ্যে খরচা করেও আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার যে টাকাটা বাঁচবে আমি সেই টাকাটাই পরিবারগুলোকে দেবো। चुनाव प्रचार की समय सीमा कम पड़ने पर भड़के दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा के आह्वायक जीवेश सरकार बोले, आखिर क्या साबित करना चाहता है चुनाव आयोग। सिलीगुड़ी विधानसभा में 17 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आज संयुक्त मोर्चा के सीपीआईएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य के समर्थन में सिलीगुड़ी शहर के 34 नंबर वार्ड स्थित तरुण तीर्थ क्लब मैदान में एक सुसज्जित शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा क्लब मैदान से शुरू होकर विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। इसमें उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य के अलावा दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा के आह्वायक जीवेश सरकार भी उपस्थित थे। इस सभा में उन्होंने जमकर चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीतलकुची में जो हिंसा हुई है वह नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का खेला है। उन्होंने कहा कि इसी कारण चुनाव आयोग ने 72 घंटों के पहले चुनाव प्रचार समाप्त करने को कहा है। आखिर चुनाव आयोग इससे साबित क्या करना चाहती है। कूच बिहार में हिंसा के दूसरे दिन भी मिला बम। सुरक्षा की मांग में ग्रामीणों ने किया पथावरोध। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कल मतदान के दिन हुई हिंसा के बाद आज दूसरे दिन भी सीतलकुची के बेलाकोबा में ताजा बम बरामद किया गया। हिंसा के बीच गांव में बम मिलने से ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग करते हुए आज सुबह सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने कल रात इलाके में जमकर बमबाजी की। दूसरी ओर आज सुबह पुलिस ने गांव के खेत से एक ताजा बम बरामद किया। गौरतलब है कि शनिवार को विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान बेलाकोबा के इस गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूरी जोरा पकारी गांव में केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी ओर जिले में भाजपा एवं तृणमूल समर्थकों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। এখানে বোম পাওয়া গিয়েছে। বোমের জন্য সাধারণ মানুষ পদব্রত করেছে। তারা এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা চায়। যারা দোষী তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি চায়। পুলিশ এসে কি করলো এখানে? পুলিশ এসে বললো যে আপনারা পদব্রত খুলে দিন, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যেই দোষীকে গ্রেফতার করবো, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবো। যদি না হয় তাহলে আমাদের জনগণ আবার বৃহত্তর আন্দোলন করবে, প্রয়োজনে আবার অবরোধ করবে। देश में कोरोना विस्फोट, एक दिन में आया रिकॉर्ड 1.53 लाख नए केसेस, 6 महीने बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख पार हो गया। छठी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,52,879 नए केसेस सामने आए और 839 लोगों की मौत हुई। हालांकि 90,584 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 1,45,384 नए केसेस आए थे। बीते दिन 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। आज की देश की कोरोना स्थिति आखिर ऐसी है। कोरोना के कुल केस 1,33,58,805, कुल डिस्चार्ज 1,20,81,443, कुल एक्टिव केस 10,46,631, कुल मौत 11,08,087, कुल टीकाकरण 10,15,95,147 डोज दी गई। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने रविवार को विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इलाके के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की और उन्होंने उनकी समस्याएं एवं उनका सुझाव सुना। साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद उन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। लोग पश्चिम बंगाल में शांति और विकास के लिए फिर से ममता सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। गौतम देव का मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार दिलीप सिंह और भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी से है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। रायगंज विधानसभा केंद्र से खड़े भाजपा, तृणमूल और संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों ने जमकर किया चुनाव प्रचार। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधान सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होने हैं। जिले के रायगंज विधानसभा केंद्र में इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिग्गज नेता मैदान में है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष तथा उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल, निवर्तमान विधायक एवं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार मोहित सेन गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है। तीनों ही दिग्गज नेता है और तीनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसलिए तीनों ही प्रत्याशी आज जबरदस्त चुनाव प्रचार करते नजर आए, क्योंकि आज रविवार है और लोग घरों में रहते हैं। इसलिए तीनों दिग्गज नेता लोगों के घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। পদ্মফুল আজকে আমাদের চিহ্ন হচ্ছে পদ্মফুল, তো এই পদ্মফুল নিয়েই আজকে প্রচার করছি, জনগণকে বোঝাচ্ছি যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মফুল চিহ্নে দাঁড়িয়েছি।
2 নম্বরে বোতাম চিপে আপনারা পদ্মফুলকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন, সেটাই আপিল আমি জনগণকে করি। আমার দেখুন জন্মভূমি, হ্যাঁ, আর এখান থেকেই আমি নিজের কর্ম চালু করি। বন্দর নিজের বসত বাড়ি থেকে প্রথম আমার ব্যবসায়িক অফিস আমরা চালু করি বন্দর থেকেই। আর এই বন্দরকে আমি খুব ভালোভাবে চিনেছি। আমার জীবনের 42টা বছর এই বন্দরে আমি কাটিয়েছি। তো বন্দরের প্রত্যেকটা গলি অলি গলি সব আমি চিনি। বন্দরের প্রত্যেকটা মাঠে আমি খেলাধুলা করেছি, হ্যাঁ। তো সেই সুবাদে এটা আমার কাছে খুব পরিচিত এলাকা। সেই জন্য আমাকে এই এলাকাবাসী দেখে আজকে খুব ইচ্ছাস প্রকাশ করছে, খুব ভালোভাবে তারা আমাকে সাড়া দিচ্ছেন। আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা বোধ জানাই, হ্যাঁ, যে আজকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এই হিসাবে আমাকে সাড়া দিচ্ছেন, আমার সাপোর্টে বেরিয়ে আসছেন, হ্যাঁ। এটা সত্যি আমার জন্য খুব আনন্দের ব্যাপার, খুব গর্বের ব্যাপার। वाम मोर्चा की नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने शीतलकुची हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र से खड़े संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार सुखविलास वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची वाम मोर्चा की प्रसिद्ध सभा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इस घटना को दुखद और त्रासदीपूर्ण बताया। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को शीतलकुची में हिंसा हुई थी। परिस्थितियों को संभालने के लिए सीआरपीएफ को गोली चलानी पड़ी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা 5টা মায়ের কোলকে খালি করেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে ছিল না। তৃণমূল এবং তৃণমূল থেকে যাওয়া বিজেপি এরা দুজনে মিলে এই কাজগুলো পশ্চিমবঙ্গে করেছে। সুপ্রিম কোর্টের দেখরেখে, বিচার বিভাগের দেখরেখে এর তদন্ত হওয়া উচিত যে কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যে যাতে ওরা গুলি চালাতে বাধ্য হলো। আমরা মনে করছি যে এখানে তৃণমূল বিজেপির বাইনারিকে ভেঙে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে মানুষ যেখানে তারা সমর্থন জানাচ্ছেন, এই জিনিসে ওরা ভয় পেয়ে গিয়ে যাতে ভোটকে বানচাল করা হয়, ফ্রেশ অ্যান্ড ফেয়ার ভোট যাতে না করা হয়, তার জন্যই এই ধরনের রুল অ্যান্ড লয়ের যে সমস্ত রকম যে অসুবিধা, সেই অসুবিধা সমস্যাগুলোকে ওরা তুলে ধরতে চায়। रायगंज विधानसभा केंद्र से हेवीवेट नेताओं के साथ एक ऑटो रिक्शा चालक महिला भी है मैदान में। अपने ऑटो रिक्शा में ही करती है प्रचार। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज विधानसभा केंद्र से इस बार कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें कई हेवीवेट नेता भी शामिल है। इन सब के बीच रायगंज की एक ऑटो रिक्शा चालक महिला भी मैदान में है। ऑटो रिक्शा चालक महिला का नाम मंजू दास मंडल है। उनका कहना है कि बड़े लोग गरीबों के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वह मैदान में खड़ी है। वह अपने ऑटो रिक्शा से ही चुनाव प्रचार कर रही है। जो यात्री उनके रिक्शा में बैठते हैं उनसे अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करती है। मंजू चुनाव में जीतेंगी या हारेंगी ये अलग बात है, लेकिन उनका दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर लोग जरूर प्रभावित हो रहे हैं। আমি গরিবের পাশে থাকতে চাই, আমি গরিবের বন্ধু, আমি নিজেও যেহেতু গরিব, আমি যেন গরিবের পাশে থাকি, আমি তাদের জায়গাগুলো করে দিতে চাই। তারা তো আমাদেরকে 15 বছর ধরে স্বপ্ন দেখিয়েই যাচ্ছে, তারও আরও বেশি থেকেই স্বপ্ন দেখিয়ে যাচ্ছে যে এই করব ওই করবো, কিন্তু ভোট পার হয়ে গেলে তো সেই জিনিসগুলো আমাদের রায়গঞ্জে কোনো উন্নতি আজ পর্যন্ত হয় না। দুটা জিনিস হওয়ার কথা ছিল, যেটা একটা এমস হসপিটাল আর কলেজ, যেটা আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বাইরে পড়াশোনা করতে গেলে যে 30-40 হাজার টাকা করে খরচ হবে, সেখানে যদি আমাদের গরিবের এখানে যদি জিনিসটা হয় তাহলে ওর 5-6 হাজার টাকার মধ্যে যে কোনো গরিবের সন্তানটা পড়াশোনা করতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই মহিলা কলেজ যদি হয় তাহলে তো আরও বেশি মহিলাদের অনেক জায়গা করতে পারবেন, তারাও নিজের পেটের রুজি রুটি করতে পারবেন। আমি গাড়ির মধ্যে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে, আমার ফ্ল্যাগ লাগিয়ে গাড়ি চালাই, গাড়িতে প্যাসেঞ্জার করতে বলি যে আপনি নিজে গাড়ি চালাই, আমার সামনে। शहीद किशनगंज एसएचओ की मां ने तोड़ा दम, बेटे की शहादत की खबर नहीं कर पाई बर्दाश्त। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के पांजी पाड़ा गांव में बाइक चोर को पकड़ने गए बिहार के किशनगंज जिले के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद की अगुवाई में शहीद पुलिस जवान के पार्थिव शरीर का बंगाल के इस्लामपुर में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शनिवार की देर शाम पार्थिव शरीर को पूर्णिया के जानकी नगर थाना अंतर्गत
अभय रामपुर चकला पांचू मंडल टोला लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। इस बीच जब बेटे की शहादत की खबर उनकी 70 वर्षीय मां को मिली तो वह बेचैन हो गई। रात भर उन्होंने किसी तरह रोकर बिताया, लेकिन बेटे की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस बीच आज यानी रविवार को तड़के सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। घर में एक साथ मां बेटी की मौत से कोहराम मच गया है। सूत्रों के अनुसार शहीद अश्विनी कुमार और उनकी मां का अंतिम संस्कार एक साथ दोपहर 2 बजे गांव में ही किया जाएगा, जिसमें कई आला अधिकारियों और नेताओं के पहुंचने की सूचना है। गौरतलब है कि किशनगंज टाउन थाने के एसएचओ अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ शुक्रवार की रात पश्चिम बंगाल सीमा के पास बाइक चुराने वाले गैंग के ठिकाने पर उन्हें दबोचने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने पहले उनसे झगड़ा किया, फिर उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।